I think we are having a wonderful time. Everybody is motivated. There is one group which has been supporting us from day one. Is a Amritwani team from Chembur. A round of applause for the team. ये बहुत ही important session है, which is yoga for lifestyle. Okay, and my apology also कि थोड़ा सा late चल रहे. Deep apologies. सुबह से हौसला बढ़ा रहे हैं आप लोग सबका. So please join us. This is for lifestyle disease like diabetes, cardiovascular diseases, and rheumatoid arthritis and all. Okay, so this will be a 40-minute session, and of course the lunch is also open, a sattvic food downstairs. But let's enjoy this and create the energy and the appetite to do the food. Okay, आइए sir. In many streams, India is progressing. So in terms of diseases, also India is progressing. Okay. So soon India will be the number one in diabetes, in high blood pressure. So all these problems are because of our lifestyle. So that's why we are focusing on this topic. I know many of us are already suffering from these problems. So just please be patient and just enjoy the session. Take some output from this session if you can understand how these diseases are affecting you and how yoga can help in solving these issues. Okay. So as yesterday also I said, yoga therapy is a byproduct of yoga spirituality. So if you are seeing these practices, don't just go and start doing it. Okay. Because yoga therapy is a very unique and very precise thing to be accepted, to be adopted. So basically these practices are tailor-made, customized, and they should be practiced under the expert guidance of a yoga therapist. Okay. So for this session we have from our team Dr. Nilima. Ma'am, please come on the podium. Dr. Nilima is a doctor by profession. She has a clinic in Thane, Pokhran Road number 2, and she will be giving the instructions. She has done her TTC from Arts of Living from Yoga Vidya Niketan, and also her therapy course from Yoga Vidya Niketan, Washington. And for demonstration, we have Manju Patel. She is also a yoga teacher, yoga therapist, and also she is a fashion designer. So let's have the session. Thank you for your patience. Start. Okay, good morning everybody. Am I audible? Yes. So शैलेश जी ने तो आज सुबह अपनी जो बहुत अच्छे से शुरुआत की है, फिर से एक ये सेशन के लिए हम ओंकार करेंगे. ओंकार के साथ आगे हम प्रैक्टिसेस करेंगे. That will help you in lifestyle modification. जैसे अभी भानु सर ने बोला है कि आपको आजकल हमें लाइफस्टाइल डिसऑर्डर ज़्यादा है, डायबिटीज, थायराइड, हाइपरटेंशन. So we can manage with that. Some practices are like that. You can inculcate your day-to-day life. आप चेयर पे बैठ के भी कभी भी कहीं पे भी कर सकते हो. तो थोड़ा सा आप ध्यान देके करेंगे. I will request you gentle and focused attention for your health. ठीक है? So let's start. Sit straight, spine erect. Let's start with the Onkar 3 times. Gently close your eyes. Take a deep breath in and out. One more deep breath in and out. Now take a breath in for Onkar. Any comfortable position, you can sit, you can do it on this first practice. We'll start with the Shwasana Marga Shuddhi. Shwasana Marga Shuddhi is cleansing of your nostrils so that air passages, so that we can do your practices very nicely. Sit in any comfortable position. आप चेयर पे बैठे हो, आधारासन कौन सा भी ले सकते हो. भारतीय बैठक भी है, पद्मासन है. So with your thumbs up position of the right hand, your right thumb on your right nostril. Elbow is in the line of the shoulder. Gently close your eyes and with contracting your abdomen and chest muscles. Breathe out. 1, 2, 3,
position of your left hand. Left thumb on your left nostril. And gently give a stroke, abdominal and chest stroke while exhaling. 1, 2, 3, 4 and 5. Release. Both the hands on your both the knees in Drona Mudra. Now we'll do Shwasana Marga Shuddhi, 5 strokes with both the nostrils are open. 1, 2, 3, 4 and 5. Now feel the effect. Now we'll do some poses in standing position. So I request Manjuji to stand. You all also can do in standing position. थोड़ा सा स्कंध चालन क्रिया हम करेंगे. कल हमने शोल्डर रोटेशन किया था, आज उनका थोड़ा सा और एक मॉडिफिकेशन देखेंगे. बोथ द हैंड्स इन फ्रंट, फिंगर्स इंटरलॉक्ड और योर शोल्डर्स, टेक योर शोल्डर, ओनली शोल्डर का मूवमेंट होगा. शोल्डर्स अप एंड डाउन, अप डाउन, अप डाउन, अप डाउन, अप डाउन. नाउ आगे और पीछे, फॉरवर्ड एंड बैकवर्ड. साइड व्यू में देखेंगे. फॉरवर्ड and backward, forward and backward, forward, backward, forward, backward. One more time, forward and backward. Now we can do with this also rotation clockwise and anti-clockwise. So that forward rotation clockwise. 1, 2, 3, 4, 5. 2, 3, 4, 5. Relax. Now we'll do. आम सजेस्ट करता है हस्त पार्श्वासन में दोनों हाथ पीछे की तरफ आएंगे. जिनको शोल्डर में ज़्यादा पेन है, फ्रोजन शोल्डर है, ज़्यादा अपनी खिंचातानी ना करें, एज पर योर कैपेसिटी. अगर पॉसिबल है तो दोनों हाथों के फिंगर्स को इंटरलॉक करें और ट्राई टू स्ट्रेटन योर एल्बोज बिहाइंड एंड स्ट्रेट योर हैंड्स बैकवर्ड्स. जितना हो सके हाथों को पीछे की तरफ लेके जाए, सो दैट इट विल ओपन योर चेस्ट. और उसके साथ ही जब भी आपका कैपेसिटी के अनुसार स्ट्रेच हो जाएगा, टेक योर नेक ऑल्सो बैकवर्ड्स. आपका हेड पीछे की तरफ आएगा, सर पीछे की तरफ. इट विल गिव अ नाइस स्ट्रेच ऑन योर फ्रंट साइड ऑफ योर नेक. आपकी थायराइड रीजन में बहुत अच्छा सा स्ट्रेच आएगा और उसके साथ ही आपको ब्रीदिंग में भी बहुत फ़ायदा समझ में आया कि आपकी चेस्ट बहुत अच्छे से ओपन हो जाएगी. दूसरी बात यह है, आजकल हम डेस्क पे ज़्यादा देर बैठते हैं तो फॉरवर्ड बेंडिंग ज़्यादा होता है, तो शोल्डर के लिए भी बहुत अच्छा है. फॉर रिलीजिंग, टेक योर हेड फॉरवर्ड एंड स्लोली रिलीज योर हैंड्स टू द साइड. रिलीज योर इंटरलॉक फिंगर्स एंड फील द नाइस स्ट्रेच. ठीक है, दिस इज द हस्ता पार्श्वासन. एंड विल डू वन मोर स्टैंडिंग पोजिशन, दैट इज अ परिवर्तित चक्रासन. जो हमने कल किया था उसका और एक मॉडिफिकेशन हम देखेंगे. जैसे हमने दोनों हाथ अपने शोल्डर के लाइन में साइड को ले लेंगे. ठीक है, दोनों हाथ palms towards the floor. अभी दिस इज साइड बेंड हो जाएगा आपका, लैटरल बेंड है स्पाइन के लिए. इसका बहुत ही अच्छा फायदा होता है लंग्स के वेंटिलेशन के लिए. सो दैट इमेजिन अ वॉल क्लॉक इन फ्रंट ऑफ यू. आपके सामने एक घड़ी है, घड़ी के 12 के आंकड़े पे आपकी नज़र है. नाउ ट्राई टू बेंड टुवर्ड्स द राइट साइड. हाथों को वैसे ही रखते हुए अपनी कैपेसिटी के अनुसार जितना हो सके राइट साइड को बेंड करें. आपकी कैपेसिटी खत्म होने के बाद राइट हैंड को ढीला छोड़ दें. रिलैक्स योर राइट हैंड, रिलैक्स. एंड नाउ टेक योर लेफ्ट हैंड अपवर्ड्स, पाम फेसिंग टुवर्ड द स्काई. जितना हो सके उतना. और रिलैक्स योर नेक. जितना हो सके अपने बाएं हाथ को ऊपर की तरफ लें. फील द नाइस स्ट्रेच ऑन योर लेफ्ट साइड ऑफ द बॉडी. आपकी बाई साइड का बहुत अच्छे से स्ट्रेच महसूस होगा. लेफ्ट साइड के लंग में बहुत अच्छे से वेंटिलेशन होगा, बहुत अच्छे से हवा आती जाती आपको महसूस हो जाएगी. वेरी नाइस. फॉर रिलीजिंग, टेक योर बोथ द हैंड्स इन द लाइन ऑफ द शोल्डर्स एंड नाउ टेक योर बॉडी इन द सेंटर. नाउ विदाउट स्टॉपिंग दैट टर्न टू योर लेफ्ट साइड. लेफ्ट साइड को टर्न रिलैक्स करें. राइट हैंड को अपवर्ड, पाम फेसिंग टुवर्ड द स्काई और रिलैक्स योर नेक. नॉर्मल ब्रीदिंग, जैसे अपनी कैपेसिटी के अनुसार नॉर्मल ब्रीदिंग करो. फील द नाइस स्ट्रेच ऑन योर राइट साइड ऑफ द बॉडी. पूरी राइट साइड में जितना हो सके फील द स्ट्रेच. यस अंकल, वेरी नाइस. नाउ ओपन योर आईज एंड मेक योर बोथ द हैंड्स स्ट्रेट एंड बोथ द हैंड्स बाय द साइड ऑफ द बॉडी एंड नाउ रिलैक्स. बेड पे बैठ के भी कर सकते हैं आप. बॉडी के लिए भी बहुत अच्छा लंग्स को वेंटिलेशन हो जाएगा
और स्पाइन का लैटरल बेंड है इसमें, सो दैट इट इज़ वेरी नाइस। हम फॉरवर्ड या बैकवर्ड बेंड करते हैं ना। अभी हम देखेंगे दूसरा, देखेंगे हम अभी देखेंगे वज्रासन, बैठ के करेंगे। अभी वज्रासन तो हम सबको पता है, फिर वी विल स्टार्ट विथ वज्रासन। इन एनी कंफर्टेबल पोजीशन आप बैठेंगे तो अभी आप ये वज्रासन कर नहीं पाएंगे, लेकिन देख लीजिए, ठीक है। बहुत द रिलैक्सेशन पोजीशन में मंजू जी है अभी। नाउ फॉर गोइंग इनटू द आसन, शी इज ओपनिंग हर आईज, taking both the legs in the center, right then left, both the hands by the side of the body. Now folding right foot, right leg vertically and then अपने बटक के नीचे राइट फुट ले लेंगे और उसके साथ राइट साइड को टिल्ट होते हुए लेफ्ट लेग को भी टर्न करते हुए फोल्ड करते हुए लेफ्ट बटक के नीचे लेंगे। अभी जैसे ये बैठे हैं तो टोज आर टचिंग टुगेदर, हील्स आर अपार्ट, सो दैट वो बैकवर्ड आप देखेंगे, अगर वो दिखाएंगे तो बैकवर्ड में जो हील्स अपार्ट पोजीशन में वहाँ पे अपने बटक्स रेस्ट होने चाहिए, ठीक है। इज इट क्लियर? ठीक है। एंड दिस पोस्चर हेल्प्स टू स्ट्रेटन योर, आपका जो पोस्चर है वो करेक्ट होने के लिए दिस हेल्प्स अ लॉट। तो यू कैन पोस्चर अपना करेक्ट होने के लिए ये बहुत हेल्पफुल आसन है और ईजी है। जिनको नी में प्रॉब्लम है या एंकल जॉइंट में पेन है वो ना करें, बाकी कोई भी ये आसन कर सकता है। आप चेयर पे नहीं, सोफे पे बैठ के, बेड पे बैठ के भी कर सकते हैं, ठीक है। अभी वज्रासन से भी हम आगे जाते देखेंगे कि सुलभ सुप्त वज्रासन। सुलभ सुप्त वज्रासन मतलब क्या करेंगे कि दोनों हाथों को पीछे की तरफ लेंगे, राइट हैंड बिहाइंड, फिंगर्स पॉइंटिंग टुवर्ड्स योर टोज एंड लेफ्ट हैंड बिहाइंड। अभी आपके जो शोल्डर्स के नीचे आपके दोनों पाम्स हैं, इन द लाइन ऑफ योर शोल्डर लाइन के इसमें पाम्स है, एंड जितना हो सके अपनी चेस्ट को ओपन करेंगे और हेड बैकवर्ड्स। यहाँ पे भी आपके थ्रोट रीजन में बहुत अच्छा स्ट्रेच आता है, चेस्ट पे अच्छे से स्ट्रेच आता है, एब्डोमिनल कैविटी अच्छे से ओपन हो जाती है, तो डाइजेशन के लिए बहुत फ़ायदा देगा। इफ़ योर डाइजेशन इज़ गुड, आपका मेंटल गट हेल्थ इज़ ऑल्सो गुड, तो दिस ऑल्सो हेल्प्स फॉर all the metabolic disorders, ठीक है। For releasing, take your left hand in the front, then right hand and come into the Vajrasan. Now we'll do Sulabha Ushtrasan. अभी टाइम के हिसाब से हम आसन से रिलीज नहीं कर रहे हैं, इसी में से हम उष्ट्रासन में जाएंगे। तो अपने दोनों नीज पे आ जाएंगे, दोनों नीज में हिप विड्थ डिस्टेंस लेंगे, दोनों नीज में थोड़ा सा डिस्टेंस रहेगा अपने हिप के हिसाब से, और दोनों हाथों को वन बाय वन पीछे की तरफ लेते हुए अपने पाम्स को अपनी कमर पर रखते हुए बैकवर्ड बेंड करेंगे, पीछे की तरफ बेंड करेंगे, ठीक है। नेक में अच्छे से स्ट्रेच आ रहा है, अपर बैक में अच्छे से स्ट्रेच आ रहा है, और लोअर बैक में भी फ्लेक्सिबिलिटी आएगी, ठीक है। एंड नॉर्मल ब्रीथिंग इन एवरी पोस्चर, स्थिर सुखम आसना। तो ये कोई खींचातानी नहीं करनी है, जितनी अपनी कैपेसिटी के अनुसार करना है। नाउ फॉर रिलीजिंग, ओपन योर आईज एंड कम इन द स्ट्रेट पोजिशन एंड नाउ रिलैक्स। अभी हमने बैकवर्ड बेंड किए सर, तो इसके लिए कॉम्प्लीमेंट्री पोजीशन मतलब फॉरवर्ड बेंड भी करेंगे स्पाइन के लिए एक, तो उसके लिए हम अभी करेंगे जानु शीरासन, ठीक है। जानु शीरासन जैसे नाम है, तो जानु मीन्स अपना नी, जानु मीन्स दिल नहीं, ठीक है। तो अपना जो नी को सर लगाना है, तो शी इज सिटिंग इन द अभी रिलैक्सेशन पोजीशन से वो भी स्ट्रेट पोजीशन में है। नाउ शी इज फोल्डिंग हर लेफ्ट फुट, ठीक है। लेफ्ट फुट फोल्ड करके लेफ्ट फुट को ग्राइन में रखना है, राइट ग्राइन में। जिनको जितनी कैपेसिटी उतना फुट को अपने अंदर ले सकते हैं, और दोनों हाथ अपने दोनों थाइज पे है। हल्का सा बैकवर्ड बेंड देना है पीछे की तरफ, और हाथों को आगे की तरफ सरकाते हुए आगे की तरफ जाना है। ध्यान रहे कि आपका सर ऊपर ही रहेगा, नेक से बेंड नहीं करना है, कमर से फॉरवर्ड बेंड हो जाएगा, हिप जॉइंट से, ठीक है। जितना पॉसिबल है तो अपने टोज को या हाथ एंकल को पकड़िए, और दोनों एल्बोज है वो साइड में रेस्ट करेंगे। एंड नाउ टच योर हेड, फोरहेड ऑन योर नी, दिस इज द जानु शीरासन। इन द सेम एंड फॉर रिलीजिंग जैसे है, सर को ऊपर ले लेंगे, सर को ऊपर लेने के बाद दोनों हाथों को छोड़ते हुए पीछे की तरफ आते हुए रिलैक्स करेंगे, और सेम पोजीशन करेंगे लेफ्ट साइड में, राइट फुट इन द लेफ्ट ग्राइन एंड शी इज डूइंग द सेम पोस्चर। तो इसके बेनिफिट्स कितने अच्छे हैं देखिए, कि फॉरवर्ड बेंड है तो आपके पैंक्रियास पे अच्छे से प्रेशर आ जाएगा, आपके थायराइड पे अच्छे से प्रेशर आ जाएगा। दूसरी बात ये है कि इसमें आपके थाई और काफ के पिछले पैर के मसल्स को और पीठ के मसल्स को भी अच्छे से स्ट्रेच आता है, सो दैट इट हेल्प्स इन होल बॉडी के लिए बहुत अच्छा स्ट्रेच आता है इससे। तो दिस इज़ अ वेरी नाइस आसन।
तो दोनों साइड से कर सकते हैं, अपनी कैपेसिटी के अनुसार करें। फॉरवर्ड बेंट जिनको स्लिप डिस्क है, हर्निया है, ये लोग ये आसन ना करें, ठीक है। या कोई रिसेंट सर्जरी है, पेट में ज़्यादा दर्द है तो इससे बाकी पैंक्रियास के हेल्थ के लिए भी बहुत फ़ायदा होता है। नाउ विल डू वन मोर आसन, वक्रासन, दैट इज़ वेरी हेल्पफुल फॉर योर पैंक्रियाटिक हेल्थ। तो आपके एब्डोमिनल फैट भी कम हो जाती है वक्रासन से। तो जैसे अभी समझो वक्रासन मीन्स टेढ़ा होना, तो सिटिंग पोजीशन में वक्रासन के लिए शी इज फोल्डिंग हर राइट फुट एंड राइट फुट इन फ्रंट ऑफ लेफ्ट नी, एंड नाउ टेकिंग हर बोथ द हैंड, लेफ्ट हैंड अपवर्ड्स शी इज टेकिंग एंड पुटिंग इट इन द, प्रेस कर रही है अपने लेफ्ट नी को, और दायां हाथ जो है वो पीछे की तरफ स्पाइन की लाइन में आएगा, एंड शी इज टर्निंग हर हेड टुवर्ड द राइट साइड। फील द नाइस एब्डोमिनल स्ट्रेच, ट्विस्ट जो है बहुत अच्छा आता है, यू विल फील द स्ट्रेच, ठीक है। ये जो वक्रासन राइट साइड में, ठीक है। तो आप देखेंगे कि एब्डोमिनल कैविटी में बहुत अच्छा सा स्ट्रेच आ रहा है, नेक पे अच्छे से स्ट्रेच आ रहा है, ठीक है। फॉर रिलीजिंग सेम अपोजिट डायरेक्शन में रिलीज करेंगे, जैसे आए थे उससे अपोजिट, हाथ को छुड़वाएंगे राइट, देन लेफ्ट, एंड देन रिलैक्स योर राइट फुट, एंड देन फोल्ड अगेन योर लेफ्ट फुट ऑन द अपोजिट साइड, सेम थिंग, ठीक है। जिनको ये आसन अभी जो वक्रासन हम दिखा रहे हैं, जिनको ये पॉसिबल नहीं है, उनको खड़ा रह के करने के लिए एक कटी चक्रासन भी है, उसका माइल्ड वर्जन वो भी एक बार बताएंगे खड़े रह के, ठीक है। ये थोड़ा डिफिकल्ट जाता है, दिस इज बट वेरी नाइस आसन, ठीक है। नाउ वक्रासन के बाद एक बार मंजू जी खड़े रह के कटी चक्रासन से दिखाएंगे। आपके हिप वेट की आपको जैसे कंफर्टेबल डिस्टेंस है वैसे कंफर्टेबल दोनों पैरों में कंफर्टेबल डिस्टेंस लेके खड़े रहेंगे, दोनों हाथ सामने की तरफ, जैसे इमेजिन आपके हाथ में कोई बुक या ऐसे कुछ पकड़ा हुआ है, और साइड को ट्विस्ट लेंगे, कमर से साइड की तरफ घूमेंगे जितना हो सके अपने हिसाब से, ठीक है। और ब्रीदिंग नॉर्मल रहेगा, अपनी कैपेसिटी के अनुसार सर को भी घुमाएंगे जितना हो सकता है, ठीक है। तो बॉडी में ट्विस्ट आएगा, आपके स्पाइन में अच्छे से ट्विस्ट आएगा। For releasing, come to the center slowly and turn towards your left side. जितना पॉसिबल हो सके पीछे की तरफ देखने की कोशिश करें। आप देखेंगे रोज प्रैक्टिस करते हुए आपका जो पीछे की तरफ देखने का ये है एरिया बढ़ता जाएगा। सो दिस विल ऑल्सो गुड एब्डोमिनल ट्विस्टिंग एंड स्पाइनल ट्विस्टिंग ऑल्सो, ठीक है। एब्डोमिनल ऑर्गन्स को भी अच्छे से मसाज हो जाता है, ठीक है। फॉर रिलीजिंग कम टू द सेंटर एंड नाउ रिलैक्स। नाउ अभी लाइंग डाउन पोजीशन में 2 आसन देखेंगे, और उसके बाद हम बहुत अच्छे बंधन मुद्रा सीखेंगे जो आप सब कर पाएंगे, तो यू विल एंजॉय दैट प्राणायाम एंड ऑल दिस थिंग्स, ठीक है। सो बाय फॉर लाइंग डाउन ऑन योर बैक, हम पहले करेंगे द्रोणासन। द्रोण जो हम सभी पता है कि द्रोण मीन्स जो पॉट की हिसाब से होगा एज अ बॉल पोज। तो द्रोणासन में आने के लिए दोनों पैरों को साथ में लिया है, और अभी दोनों पैर, अपना सर और दोनों हाथ एक ही साथ अपने एब्डोमेन मसल्स को कॉन्ट्रैक्ट करते हुए उठाएंगे, लेकिन ब्रीदिंग नॉर्मल रखेंगे। स्थिर सुखमासन मतलब कुछ खिंचातानी नहीं होगा, ठीक है। अपनी कैपेसिटी के अनुसार होल्ड करें। दिस हेल्प्स टू बिल्ड अप योर एब्डोमिनल मसल्स की स्ट्रेंथ बढ़ाने के लिए बहुत अच्छा है। जिन यंग पीपल को 6 पैक्स भी बनाना है, दिस इज द स्टार्टिंग पोजिशन। और ज़्यादा 6 to 8 इंचेस ही ऊपर लेनी है अपनी हील्स को, ठीक है। पैरों का 6 to 8 इंचेस लेंगे तो ज़्यादा स्ट्रेन हो जाएगा मसल। नाउ फॉर रिलीजिंग, तीनों एक्सट्रीमिटीज अपने एक के साथ एक नीचे की तरफ लेके आएंगे, अपनी कैपेसिटी के अनुसार होल टाइम बढ़ा सकते हैं, ठीक है। अभी और एक आसन हम देख रहे हैं कि मुद्रा है विपरीत करणी मुद्रा। तो विपरीत करणी मुद्रा के लिए भी प्रिपरेटरी पोज करके द्रोणासन का उपयोग कर सकते हैं। एक्चुअली शीर्षासन सब आसन करा जाए, सबको शीर्षासन सीखना होता है, करना होता है, लेकिन होता नहीं है शुरू में। तो आप विपरीत करणी द्रोणासन से शुरू करके विपरीत करणी कर सकते हैं, और उसके बाद आप शीर्षासन उसके लिए या सर्वांगासन के लिए जा सकते हैं। सो फॉर गोइंग इनटू द विपरीत करणी मुद्रा, शी इज इन द लाइंग डाउन पोजीशन। नाउ contracting your abdominal muscles, gently lift your both the legs together in the 30, 40, 60, 90 degrees and go to the Purva Halasana. And now support your both the hips by folding your both the elbows and palms on your hips. Now take your both the legs up to the sky. This gives a nice stretch in your thyroid, a nice
प्रेशर ऑन योर थायराइड मसल, थायराइड ग्लैंड। और आपका जो वेनस रिटर्न है, जो डिऑक्सीनेटेड ब्लड पैरों की तरफ है, वो अच्छे से नीचे की तरफ आ जाता है। तो सर्कुलेशन के लिए भी बहुत अच्छी पोस्चर है ये, ठीक है। वेरी नाइस, तालियां हो जाए एक बार। थैंक यू सो मच। एंड फॉर रिलीजिंग, जेंटली कम इनटू द हालासन, पूर्व हालासन। नाउ रिलैक्स योर बोथ द हैंड्स एंड नाउ जेंटली one by one touch your vertebra on the ground and gently come down in 90, 60 and 30 degrees. अपने पैरों को नीचे की तरफ पटकाना नहीं है, जितना जेंटल हो सके उतना करें। जिनको पॉसिबल है तो ठीक है, अदरवाइज आप चेयर का सपोर्ट लेके या वॉल का सपोर्ट लेके कर सकते हैं, चेयर का भी कर सकते हैं, लेकिन उसके लिए आपको कोई हेल्पिंग हैंड लगेगा, ठीक है। ओके, सो दिस इज अ विपरीतकरणी मुद्रा। So now we'll go for the बंध हैंड मुद्रास, ठीक है। आई विल रिक्वेस्ट मंजू टू सिट, ठीक है। तो अभी पहले हम देखेंगे कि हम दृष्टि देखते हैं। इसके लिए दृष्टि मतलब क्या, भ्रूमध्य दृष्टि, नासाग्र दृष्टि हमने देखा है ना। तो पहले विल प्रैक्टिस कि नासाग्र दृष्टि मतलब कैसे करनी है। नासाग्र मीन्स नाक के, नोज के टिप पे हमें ध्यान देना है। उसके लिए हम अभी सब अपना अंगूठा सामने की तरफ ले, थम्स अप पोजिशन करके, और अपनी तरफ अपने उसको नज़दीक लेते आए, सो दैट यू विल फील कि आपका जो नेजल टिप पे आपकी दृष्टि आ रही है। दिस इज कॉल्ड एज अ नासाग्र दृष्टि, अपनी तरफ लेनी, ठीक है। दिस इज कॉल्ड एज अ नासाग्र दृष्टि। नाउ विल प्रैक्टिस वन मोर दृष्टि, दैट इज अ भ्रूमध्य दृष्टि इन बिटवीन योर आईब्रोज। फॉर दैट उल्टा थम्स अप करना है और ऊपर की तरफ से अपने अंगूठे को अपनी तरफ लेके आना है और सर तक लेके ऊपर की तरफ से निकालना है। दिस इज अ भ्रूमध्य दृष्टि, ठीक है। तो नासाग्र दृष्टि, भ्रूमध्य दृष्टि, इतना भी हम प्रैक्टिस करें। आजकल मोबाइल से भी इतनी स्ट्रेन आती है, बहुत सारा काम बढ़ गया है ना, व्हाट्सएप इधर क्या है उधर क्या है वो देखने से। तो वो बहुत ही दृष्टि के लिए भी बहुत अच्छा, अपने आइज़ के लिए भी बहुत अच्छा एक्सरसाइज है। आप कहीं पे भी कभी भी कर सकते हैं, नो नीड, अपना हाथ अपने पास ही है, ठीक है। तो इसके साथ अभी करेंगे हम जीवा बंध। तो जीवा बंध में, जीवा मीन्स टंग लॉक, बंध मीन्स लॉक। हमने जो सुना है ना, योग में बहुत मूल बंध, जालंधर बंध, उडियान बंध ये सीखा है। तो जो जालंधर बंध लगता है उसके पहले की प्रैक्टिस के लिए हम जीवा बंध सीखेंगे, तो इट विल हेल्प यू फॉर द जालंधर बंध ऑल्सो, ठीक है। तो जो जीवा बंध है, टंग लॉक करनी है। तो टंग को लॉक कैसे करना है, तो आपकी जो टंग की टिप है वो आपके अपर जो टीथ है उनके रूट्स की तरफ लगनी चाहिए, और टंग की जो साइड की बाजू है वो अपने हार्ड पैलेट की तरफ दोनों साइड से चिपकनी चाहिए। वैसे आपकी टंग को ऊपर की तरफ लेंगे तो आपकी जो टंग नीचे जो टंग फ्रेनम बोलते हैं जिसको, वो जो है उसको स्ट्रेच आता है अच्छे से, दैट इज कॉल्ड एज अ जीवा बंध। और ओपन योर माउथ एज वाइड एज यू कैन, और ये सब करते हुए अपनी ब्रीथ नॉर्मल रखनी है। ऊपर के नीचे के जो आपका फ्रेनम है उस पर स्ट्रेच आना चाहिए अच्छे से, वो विद प्रैक्टिस आ जाएगा। वेरी नाइस मैम, यू आर डूइंग वेरी नाइसली। दोनों का भी अच्छा हो रहा है, आपका भी हो जाएगा, ठीक है। तो ये जब भी करते हैं तो नासाग्र दृष्टि रहेगी इसके साथ, जीवा बंध के साथ, एंड नॉर्मल ब्रीथ, 3 to 5 नॉर्मल ब्रीथ्स। इसका फ़ायदा क्या है, देखिए फेशियल मसल्स को स्ट्रेच अच्छे से आता है, एक्सरसाइज हो जाती है, टंग की एक्सरसाइज हो जाती है, और टंग को जो क्रेनियल नर्व सप्लाई करती है तो वो सब फेशियल जो नर्व्स है उसको तो अच्छे से स्ट्रेच आएगा, तो ब्रेन भी अच्छे फंक्शनिंग करेगा। मोस्ट इंपॉर्टेंट कैरोटिड बॉडी एंड कैरोटिड साइनस, जो थ्रोट के यहाँ पे जो ब्लड सप्लाई ब्रेन के लिए जाती है, उसमें बहुत अच्छे से मसाज हो जाती है, आपकी अलर्टनेस अच्छे से बढ़ जाती है, ठीक है, एनर्जी लेवल्स अच्छी रहती है, ठीक है। दिस इज अ जीवा बंध। हम इसके साथ दूसरा करेंगे फॉर रिलीजिंग, क्लोज योर माउथ एंड टेक योर टंग डाउन। सिंह मुद्रा, जैसे नाम है सिंह के जैसे, तो उसमें मुद्रा है, तो उसमें हम क्या करेंगे, भ्रूमध्य दृष्टि करेंगे। जिनको पॉसिबल नहीं है, चक्कर जैसा लगता है, वो दृष्टि अपनी आंखें बंद करके दृष्टि ना करें तो भी चलेगा। अपनी टंग को जितना पॉसिबल है उतना पॉसिबल आप बाहर की तरफ खींचे, टिप ऑफ द टंग। और अभी जो आपकी जो चिन है उसको अपनी स्टर्नल नॉच, यहाँ पे जो ये है, यहाँ पे ऐसे पीछे की तरफ ले, नेक को फोल्ड ना करो, फॉरवर्ड बेंड ना करना है, सिर्फ चिन को टक करना है, ठीक है। एंड आपकी दृष्टि है अपर, भ्रूमध्य दृष्टि हो जाएगी। एंड ब्रेथ नॉर्मली 3 to 5 ब्रेथ्स। जीवा बंध एंड सिंह मुद्रा कॉम्प्लीमेंट्री है, पहले जीवा बंध फिर सिंह मुद्रा। नाउ फॉर रिलीजिंग,
take your head upwards, take your tongue in and close your mouth. Then we'll do one more round of Jiva Bandh. Take your tongue up and tie to your hard palate. ऊपर की तरफ लगाएं. See that आपको stretch आ रहा है. हम सिखाएंगे आपको बाद में. We'll teach you. ठीक है. तो अच्छे से stretch आएगा. ऐसे आवाज़ करते वक्त कैसे टंग ऊपर लगती है वैसे करना है. नाइस. ठीक है. 3 to 5 breaths. नासाग्र दृष्टि. नाक के टिप पे दृष्टि आएगी. ठीक है. नाउ फॉर रिलीजिंग, क्लोज योर माउथ एंड टेक योर टंग डाउन. दृष्टि नॉर्मल करें और जीवा बंद फिर से एक बार. टेक योर टंग आउट. टेक योर टंग आउट एज मच एज यू कैन. टक योर चिन इन एंड दृष्टि मध्य रहेगी, ऊपर की तरफ दृष्टि. 3 to 5 breaths. और रिलीजिंग, take your head upside, tongue in. Now, Jiva Bandh, tongue up. Tie your tongue upside. Normal breathing going on. नासाग्र दृष्टि. Now, दृष्टि नॉर्मल करें, मुंह को बंद करें और टंग को नीचे लें. Then we'll do one more सेवा मुद्रा. For सेवा मुद्रा, take your tongue out. बाहर की तरफ ले, जितना हो सके इतना पुल करें बाहर की तरफ. चिन को स्टर्नल नॉच में रखें और भ्रू मध्य दृष्टि नॉर्मल ब्रीदिंग में. अच्छा कैरोटिड साइनस को, कैरोटिड बॉडी को अच्छे से मसाज हो जाता है. ब्रेन की तरफ ब्लड सप्लाई बहुत अच्छे से हो जाता है. ठीक है. आपकी थायराइड ग्लैंड, उस पर भी, उसको भी अच्छे से मसाज हो जाता है. नाउ टेक योर टंग इनसाइड एंड रिलीज योर सिंह मुद्रा. नाउ विल डू वन मोर मुद्रा, दैट इज अ ब्रह्म मुद्रा. ब्रह्मदेव को कितने सर हैं? 4 सर होते हैं. तो ब्रह्मदेव स्थिरता का प्रतीक है, कामनेस. तो जैसे आप करते रहोगे तो आप मेडिटेटिव पोस्चर में जाते ही मेडिटेशन में. तो जैसे आप करेंगे, आपको चिन को पैरेलल टू ग्राउंड ही रखना है. चिन पैरेलल टू द ग्राउंड. टर्न योर नेक टुवर्ड्स, हेड टुवर्ड्स योर राइट साइड जेंटली विथ नॉर्मल ब्रीदिंग. जितना हो सके उतना पॉसिबल करें और आंखें बंद करें. 3 to 5 नॉर्मल ब्रेथ्स. आंखें बंद करके इन द राइट साइड. Now open your eyes, take your head towards the center. Now turn your head towards the left side as much as you can. Chin is parallel to ground. Now close your eyes. 3 to 5 breaths. Now open your eyes, come to the center. And now take your head backwards. Feel nice stretch on your throat. Close your eyes. 3 to 5 normal breaths. Now release. Open your eyes. Take your head towards the center. और जिनको नेक पेन नहीं है वो फॉरवर्ड बेंड करेंगे. अदरवाइज ये 3 ही मुद्रा करेंगे जिसको हम दत्त मुद्रा बोलते हैं. आगे की तरफ झुके जैसे हमने सिंह मुद्रा में किया था. आपका चिन को स्टर्नल नॉच में पुश करना है. 3 to 5 नॉर्मल ब्रेथ्स. ब्रह्म मुद्रा. We'll do one more round for releasing. Come to the center. And now we'll do one more round of Brahma Mudra. Chin is parallel to ground. Take your head towards your right side. Stretch as much as you can. As per your capacity. Close your eyes. 2 to 3 normal breaths. एक हल्की सी स्माइल चेहरे पे. You'll feel so relaxed.
pleasurable stretch. Now come towards the center, turn towards your left side. Close your eyes, normal breathing going on. Now come to the center and take your head towards your backward. पीछे की तरफ सर को लेके जाएं. Feel a nice stretch in throat region, गले में महसूस करें. सर का जो भी बोझ है पीछे की तरफ डाल दें. Now open your eyes, come to the center and forward bend. Now for releasing, take your head towards the center. जिनकी आंखें बंद है वो आंखें बंद ही रखें. अभी हम प्राणायाम करेंगे, सिर्फ सुन लें. हम सबको पता है प्राणायाम के बारे में. अनुलोम विलोम, नाड़ी शोधन, हाँ मैं करती हूँ. कपालभाति, एक्चुअली कपालभाति इस नॉट अ प्राणायाम क्रिया है, लेकिन हम सब करते हैं. तो हमें अभी प्राणायाम जो सीखेंगे तो देखते हैं कि सूर्य भेदन प्राणायाम, चंद्राभ्यास, ये सब क्या है. हमें पता है कि नॉस्ट्रिल 2 है. हमें अंदर जाके गले में हमारी वेंट पाइप तो एक ही है, उसमें कोई पार्टीशन नहीं है. फिर हमें नेचर ने या भगवान ने 2 नॉस्ट्रिल्स क्यों दिए हैं, तो ये सब विचार करने की बात है ना. तो 2 नॉस्ट्रिल्स, वहाँ से सटल एनर्जी जिसको हम प्राण एनर्जी बोलते हैं, वो एनर्जी अंदर आती है. तो लेफ्ट नॉस्ट्रिल से जो आती है उसको ईड़ा नाड़ी बोलते हैं. ईड़ा लेफ्ट चंद्राभ्यास, चंद्र नाड़ी. राइट नॉस्ट्रिल इज अ सूर्य नाड़ी, उसको हम पिंगला भी बोलते हैं. और नीचे कुंडलिनी शक्ति, कुंडलिनी योग में हम बोलते हैं कि जो नीचे की तरफ है वो मिलके सुषुम्ना नाड़ी होती है ना. तो हमें ये नाड़ी शुद्धि होती है उससे. ईड़ा इज अ लेफ्ट, इट कंट्रोल्स द लेफ्ट साइड एंड पिंगला कंट्रोल्स द राइट साइड. सूर्य नाड़ी कंट्रोल्स द राइट साइड. अभी हम पहले देखेंगे कि सूर्य भेदन प्राणायाम. सूर्य भेदन मीन्स राइट नॉस्ट्रिल. राइट नॉस्ट्रिल्स को ओपन करने के लिए, मतलब राइट साइड का ईड़ा पिंगला नाड़ी को ओपन करने के लिए करना है. इसका फायदा क्या है, इसको बोला जाता है कि इसे वातनाशक है. सूर्य भेदन प्राणायाम इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर वातजन्य विकार. तो इट ऑल्सो हेल्प्स. एंड मोस्ट ऑफ द हमारे हेल्थ इश्यूज 70% इलनेसेस आर ड्यू टू वाता एंड देन पित्त एंड देन कफ. सो दैट 70%, मोर देन 70% इलनेसेस आर ड्यू टू वाता. सो दैट आप सूर्याभ्यास करेंगे, सूर्य भेदन प्राणायाम करेंगे, दिस इज ऑल्सो वेरी हेल्पफुल. दूसरी बात यह है कि सूर्य नाड़ी है, चंद्र हम शीतलता का प्रतीक है, सूर्य हमें उष्णता का प्रतीक है, हीट. तो जैसे ही हम सूर्याभ्यास करेंगे तो बॉडी में हीट जनरेट बहुत ही अच्छी होती है. और हम सबको पता है कि बात कैसा होता है, ठंडी में होता है. तो सूर्याभ्यास जितना ठंडी में ज़्यादा करें वो अच्छी है. ठीक है. तो विल स्टार्ट विद द सूर्य भेदन प्राणायाम. आप जो भी कंफर्टेबल पोस्चर में है उसमें बैठ सकते हैं, चेयर पे बैठ के भी कर सकते हैं, कोई भी आसन में कर सकते हैं. इसके लिए बहुत ज़रूरी नहीं, लेकिन ऐसा रिकमेंडेड है कि जितना आप मूलबंध लगाना, मतलब कॉन्ट्रैक्शन ऑफ योर एनुअल मसल्स करेंगे तो उसका बेनिफिट्स और ज़्यादा मिलने में फ़ायदा होता है. जिनको पॉसिबल है वो करें, और धीरे धीरे प्रैक्टिस से कैपेसिटी बढ़ जाती है मूलबंध की. तो जो अपने कंफर्टेबल आसन में आने के बाद मूलबंध लगाएं, कॉन्ट्रैक्ट योर एनुअल मसल्स. लेफ्ट हैंड इज इन द्रोण मुद्रा, लेफ्ट हैंड लेफ्ट नी पे है, और राइट हैंड का हम थंब जो है, राइट हैंड का थंब और राइट हैंड की रिंग फिंगर से लेफ्ट नॉस्ट्रिल बंद करेंगे. ठीक है. राइट नॉस्ट्रिल ओपन रखेंगे. ठीक है. राइट नॉस्ट्रिल से सांस अंदर लेंगे, ब्रीदिंग जिसको हम पूरक बोलते हैं. तो पूरक सांस अंदर लेने, इनहेलेशन इज अ पूरक. 1 2 3 4. नाउ क्लोज योर बोथ द नॉस्ट्रिल्स. नाउ लॉक योर चिन, दैट इज अ ज्वालंधर बंध. और अपने एब्डोमिनल मसल्स को भी अंदर की तरफ लेंगे तो दैट इज अ उडियान बंध. तो अभी तीनों बंद इंटैक्ट है. कुंभक मीन्स सांस को अंदर की तरफ होल्ड किया, अंतर कुंभक अपनी कैपेसिटी के अनुसार. एंड फॉर रिलीजिंग, रिलीज योर बंध एंड ब्रीथ आउट थ्रू योर लेफ्ट नॉस्ट्रिल. राइट से सांस लेनी है और लेफ्ट से छोड़नी है. जितना हो सके पूरक और रेचक में, पूरक के ज़्यादा टाइम रेचक के लिए लगना चाहिए. ठीक है. सो दैट अभी समझ में आया है. तो विल स्टार्ट. Inhale through right nostril, पूरक through right. Close your both the nostrils. Chin lock. ठीक है. And reject through left nostril.
ठीक है, अपनी कैपेसिटी के अनुसार रेट चेक की टाइमिंग बढ़ाएंगे। ठीक है, नाउ अगेन पूरक थ्रू राइट नॉस्ट्रिल, closing both the nostrils. Now reject through left nostril. जितना पॉसिबल है एटलीस्ट मूल बंद पे ध्यान देंगे, छूटता है तो फिर से लगाएंगे। नाउ पूरक थ्रू लेफ्ट, अपनी कैपेसिटी के अनुसार होल्ड करें कुंभक एंड रिजेक्ट थ्रू राइट। Now पूरक through right, close your both the nostrils and अपनी कैपेसिटी के अनुसार कुंभक करके लेफ्ट नॉस्ट्रिल से रिजेक्ट करेंगे। वन मोर साइकिल, पूरक थ्रू राइट, close your both the nostrils, reject through left। दोनों हाथ द्रोण मुद्रा में रखें, रिलैक्स करें। अभी पहले चंद्राभ्यास के बारे में सुनते हैं और फिर करते हैं। चंद्राभ्यास मीन्स लेफ्ट नॉस्ट्रिल, ईड़ा नाड़ी से, तो लेफ्ट नॉस्ट्रिल से इनहेल करेंगे और लेफ्ट नॉस्ट्रिल से ही एक्सहेल करेंगे, दैट इज अ चंद्राभ्यास। ठीक है, तो अपने राइट नॉस्ट्रिल को क्लोज करेंगे राइट थंब से। क्लोज योर राइट नॉस्ट्रिल विद राइट थंब, पूरक थ्रू लेफ्ट, क्लोज योर बोथ द नॉस्ट्रिल्स, कुंभक एज per your capacity, hold as per your capacity। Now reject through left hand, अपनी कैपेसिटी के अनुसार सांस को छोड़ेंगे धीरे धीरे स्लोली। Again पूरक through left, hold, reject through left। अपने आप से 2 साइकिल करें, अपनी कैपेसिटी के अनुसार सांस को होल्ड करें। रिलैक्स। We'll do 2 more प्राणायाम, एक उज्जायी और एक भ्रामरी। ये नादानुसंधान, ये दोनों प्राणायाम जब भी करते हैं तो आवाज़ आती है, तो इसको नाद आता है, इसमें आवाज़, इसकी आवाज़ को हम सुनते हैं तो हम और सेंटर्ड हो जाते हैं। ठीक है, तो जो उज्जायी प्राणायाम है उसमें हम गले का संकोचन करते हैं, अकुंचन करते हैं, कॉन्ट्रैक्ट योर थ्रोट मसल्स, सो दैट थोड़ी सी जगह से अगर हवा जाती है तो जो आवाज़ आती है वो देखनी है। और ये प्राणायाम जिसको देखो, ये सब मेरे लिए प्राणायाम बहुत अच्छा है, सब मुझे पता है, लेकिन मुझे टाइम ही नहीं है, हर एक का आजकल का बिजी शेड्यूल है। तो ये प्राणायाम आप कभी भी कर सकते हो, कहीं पे भी कर सकते हो, चलते घूमते फिरते, इतना भी आपको फ्लेक्सिबिलिटी है प्राणायाम। सिर्फ गले को सिकुड़ते हुए आपको सांस अंदर लेनी है, अपनी कैपेसिटी के अनुसार होल्ड करनी है और रेचक मीन्स छोड़नी है बाद में। ठीक है, इतना ध्यान रहे कि पूरक से ज़्यादा टाइम रेचक के लिए लगे। कुंभक का टाइम धीरे धीरे आप बढ़ा सकते हैं अपनी कैपेसिटी के अनुसार। इसका फ़ायदा क्या है, बॉडी लेवल पे बहुत ही अच्छे बेनिफिट होते हैं जिसके उज्जायी प्राणायाम के, क्योंकि जो हम नाक से गले तक की जो हवा है वो डेड स्पेस है, मतलब वो लंग्स में अंदर तक जाती नहीं है, दैट इज़ अ डेड स्पेस। वेंटिलेशन में डायरेक्टली ब्लड के साथ इसका ये कांटेक्ट नहीं आता है, तो वो डेड स्पेस कम हो जाती है। तो आपका वेंटिलेशन परफ्यूजन जो हम बोलते हैं, ऑक्सीजनेशन कैपेसिटी बहुत बढ़ती है लंग्स की, या ब्लड में ऑक्सीजन की मात्रा बहुत अच्छे से बढ़ने में फ़ायदा होता ही है। और इसको आप अपनी स्पिरिचुअल प्रोग्रेस के लिए भी यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि जैसे ही तो पूरक अपने गले को सिकुड़ते हुए अपनी कैपेसिटी के अनुसार, हाथ दोनों हैं वो पद्म मुद्रा में है, एक हाथ के ऊपर दूसरा हाथ, और स्पाइन स्ट्रेट है, इरेक्ट है।
गले को सिकुड़ते हुए हवा अंदर लेंगे पूरक। अपनी कैपेसिटी के अनुसार कुंभक करेंगे। if पॉसिबल आप चिन लॉक कर सकते हैं, उड्डयन बंद और जालंधर बंद लगा सकते हैं। और छोड़ते हुए बंद को रेचक करने से पहले बंद छोड़ेंगे, जालंधर बंद और रेचक करेंगे। फील द साउंड इन योर थ्रोट। प्रैक्टिस से आ जाएगा। कुंभक एज पर कैपेसिटी। रेचक। और एक बार पूरक गले को सिकुड़ते हुए हवा को अंदर लेंगे। होल्ड एज पर कैपेसिटी। कुंभक। रिलीज, जालंधर बंद, रेचक। वन मोर राउंड। रेचक। अभी और एक प्राणायाम करेंगे, भ्रामरी प्राणायाम। भ्रमर जैसी गुंजन होती है वैसे। तो ये भ्रामरी प्राणायाम हम सब ने सीखा। अभी कोई षण्मुखी मुद्रा वगैरह नहीं लगाता, ऐसे ही देखते हैं पहले। तो ये आपको जो 5 सेंसेस है इसके लिए है। तो षण्मुखी मुद्रा में क्या करते हैं वो पता है। षण्मुखी मुद्रा में हम तो करने से पहले भ्रामरी ये करेंगे, जैसे ऐसे पद्म मुद्रा में ही रखेंगे हाथ। और रंग ग या दंग ऐसे अगर आप बोल के देखेंगे तो आपकी टंग जहाँ पे लगती है आपके सॉफ्ट पैलेट को, वहाँ पे लगनी चाहिए। उस हिसाब से आपके टंग को वहाँ पे टच करते रखेंगे। और सांस अंदर लेंगे और बाहर लेंगे। दोनों सांस अंदर लेते वक्त भी आवाज़ आएगी और सांस छोड़ते वक्त भी भौरे की गुंजन जैसी आवाज़ आ रही है। सांस अंदर लेने वक्त मतलब पूरक के वक्त आवाज़ आना थोड़ा डिफिकल्ट है शुरू में। तो यू स्टार्ट विद द रेचक। जब भी आप हवा को बाहर छोड़ते हो, एक्सलेशन करते हो, पूरक करते हो, तो आवाज़ जो आती है करके, तो वो आवाज़ निकालेंगे। दैट इज़ अ भ्रामरी प्राणायाम। दिस इज़ वेरी सूदिंग। ठीक है, तो आपको बहुत फ़ायदा देगी। ठीक है, तो पूरक करेंगे पहले। कुंभक एज पर कैपेसिटी और भ्रमर के जैसे आवाज़ निकालते हैं। आवाज़ आनी चाहिए सबकी। नाइस। एंड देन रेचक के वक्त भ्रामरी प्राणायाम, भ्रमर की गुंजन जैसी आवाज़। Two more cycles. पूरक, कुंभक and रेचक। Now, keeping your eyes closed, we relax our body parts. Now, take your attention towards your right foot, right ankle, right calf, right knee, right thigh, right groin, right buttock. Now left foot,
left ankle, left calf, left knee, left thigh, left buttock. Now take your attention towards your right hand, fingers, palm, wrist, forearm, arm, shoulder, whole right hand, left finger, left palm, wrist, left forearm, left elbow, left arm and left shoulder. Now relax all the four extremities, दोनों पैर, दोनों हाथ relaxed. Now take your attention towards your groin, genitals, lower back, middle back, upper back. Relax all the body parts. Relax your lower abdomen, upper abdomen, chest, neck, face, and head. Relax your eyelids. Relax your jaw. Relax your tongue, your throat region. Relax your whole body. Take your attention towards the internal organs, brain, throat में अपनी glands है, windpipe है, food pipe है, lungs, heart, in the abdomen, liver, stomach, small intestine, large intestine, kidneys. We are thankful for all our organs, all the systems in our body. They are functioning throughout since we were in the womb of our mother without any break. We are thankful to whole body. Relax your whole body, internal and external. Take your attention towards your breath. Your breathing is going normally and naturally. You don't have to take any efforts for your breath. Feel the air inside the nostrils, अंदर जाती हुई हवा और बाहर आती हुई हवा. अंदर जाती हुई हवा थोड़ी ठंडी है, बाहर आती हुई वो गर्माहट लेती है. अंदर आती हुई हवा हमें एनर्जी दे देती है और बाहर जाते हुए हवा बॉडी को रिलैक्स कर देती है. Each inhalation gives energizes our body and exhalation relaxes our body. We are thankful for the nature, for everything we have got in this world, in this universe, this miraculous body, mind, intellect, and self. Relax as much as you can. Now, take your attention again towards your breath. Inhalation and exhalation. Gently move your right toe and right foot, left foot and both the hands. Take a deep breath in and out. One more deep breath in and out. Now, जब भी आपका मन करे अपनी आंखें हल्के से खोलें. Thank you so much. Thank you. Was there दिल से
A huge round of applause for Amrit Wani team. Everybody on the stall also. कल सुबह से हमारा हौसला बढ़ा रहे भानु जी एंड टीम फ्रॉम चेंबूर और प्लीज कम सर और नीलिमा जी बहुत बहुत धन्यवाद. कल हमारे गंडाली मित्र मंडल के भी दोस्त थे 60 साल से वो योग सिखा रहे हैं. उन्होंने भी बोला ऑथेंटिक योगा आप सिखा रहे हो, आपके लिए बड़ी बड़ी उपलब्धि है. ओके ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है और ये मंच का आप जो वीडियो जो भी है आप प्रसारित कीजिए, ज़्यादा लोगों को ऑथेंटिक योगा सिखाए क्योंकि बहुत सारा मेरा जो फर्स्ट लेक्चर होता है सस्ता ग्राम और व्हाट्सएप का कचरा निकालने का. मैं आई वार्न देम कि मैं फर्स्ट लेक्चर विल बी बोरिंग करेक्ट बट बहुत बहुत थैंक यू. यू हैव रेज द लेवल ऑफ दिस पर्टिकुलर योगा लाइफ इवेंट. ओके फ्रॉम माई बॉटम ऑफ माई हार्ट अ डीप थैंक्स टू भानु एंड टीम फॉर रीचिंग. इतने इनोसेंट से आप सुबह से मेरे से जुड़े हुए हो. हर एक ऑफ कोर्स सॉरी अगर आगे पीछे टाइम होता होगा, मैं रियली अपोलोजाइज टू यू बट थैंक यू सो मच. नो वर्ड्स. ओके और मैं रिक्वेस्ट टू एवरीबडी, there is a nice sattvic food prepared downstairs. Please have it so that yoga का जो energy है वो बनाए रखे शाम तक. We have a concert by the Suresh Wadkar team in the evening. We have a big group from Ambika Yoga Niketan. 100 people coming and practicing yoga. They are also from the same Guruji where I was taught, Nikam Guruji, Hatha Yogi Nikam Guruji. So please don't leave. There are a lot of exciting things happening. Okay? Thank you so much. Group photo. So tomorrow what is all about, right? So how fitness is so crucial in life. Okay, he has his own business of civil engineering. There are pamphlets which will give it to everybody. So thank you Narendra for being with us since morning. Yesterday is with me. And let's give a round, Pushpa Guchha to everybody as a mark of respect and affection to the Amrit Wani team. By the way, these guys are all toppers, engineers from VJTI, UDCT. They work in an organization which is a government organization. I won't name it now. But however, let me tell you, they are the scientists of our country. Okay, just imagine the science. They are all scientists, by the way. Okay, they are all scientists. You see the VJTI here? This is not bought like this. He is a topper from VJTI. Okay, Mr. Bhanu. This is his team. So thank you so much. So understand the science. As you say, yoga is art as well as a science. This is the ancient science of our rishis, which are the original scientists. Okay? Thank you so much for being with us. Okay? Thank you. Okay, everyone, you okay? Yeah. हाँ आप आगे जाइए, थोड़ा सा शिफ्ट हो जाए. यस